تمہیں پتہ ہے کہ اس زندگی میں اگر تم نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی نرم گداز انگلیاں اپنے پوروں میں لیے نرمی سے اسے مسلنے لگا۔ علینا مسکرائی، جیسے جواب جانتی ہو۔ کیا ہوتا میر سہراب خان؟ جواب اس کے منہ سے وہ سننا چاہتی تھی وہی ہوتا جو آکسیجن کے بغیر اس کائنات کا ہوتا۔ فنا ہو جاتا میں۔ تم میری زندگی میں آکسیجن کی طرح ہو، میرے آس پاس رہا کرو تاکہ سانس آتا رہے مجھے۔ اچھا، تو یہ مجھے روکنے کے لیے ڈائلاگس کی برسات کی جا رہی ہے؟ مگر میں رکنے والی نہیں ہوں، مجھے جانا ہوگا میر خان۔ بس چند ماہ کی تو بات ہے، جیسے ہی میرا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اور ویسے بھی آپ کے بزنس کو چلانے کے لیے آپ کی ڈیشنگ پرسنالٹی کے علاوہ ایک حاضر دماغ کی بھی ضرورت ہے جو کہ میرے پاس ہے، اور یہ پروجیکٹ میری دماغ کی بچی ہوئی گرہیں بھی کھول دے گا۔ پھر ہم مل کر کام کریں گے، اس دنیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ وہ اپنی تعریف کرنے کے بعد کھلکھلا کر ہنسی تو میر صاحب اسے ستائش سے دیکھتا رہا۔ سیدھی طرح بولو کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میرا بزنس صرف تمہاری ذہانت کی وجہ سے تو چل رہا ہے، اور نئے میری حریف تو مجھے منہ کے بل گرانے کا بتاپ رہتے ہیں۔ وہ برا مانے بغیر کھلے دل سے اپنی بےعزتی کر رہا تھا، کیونکہ علینا کے سامنے وہ خود کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے میر خان، میرا اکیلا دماغ بھی کام کا نہیں ہے۔ جو بھی آج تک میں نے اس بزنس کے لیے پلان کیا ہے نا، دونوں نے مل کر کیا ہے۔ میرے سامنے یہ خود کو چھوٹا مت سمجھا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری زندگی میں شامل ہونے والا مرد مجھ سے کم درجے کی حیثیت پر ہو۔ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی، اچھا اب ہاتھ چھوڑے نا ورنہ فلائٹ چھوٹ جائے گی میری۔ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ علینا کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، اسے 3 ماہ کے لیے اپنے میر خان کو چھوڑ کر جانا تھا۔ یہ فیصلہ دونوں کے لیے مشکل تھا، مگر کرنا تو تھا۔ علینا ہمیشہ سے اپنی ذہانت کو پیک پوائنٹ تک آزماتی رہتی تھی، اسے چیلنجز بہت پسند تھے۔ جس یونیورسٹی میں اس نے MBA کیا تھا، اسی کے پروفیسر نے اسے ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کی پیشکش کی تھی جو کہ کافی مشکل تھا، اور اپنے ساتھ ترکی چلنے کا کہا تھا۔ اور علینا تو ہمیشہ سے ہی مشکل پسند تھی، سو حامی بڑھ گئی۔ مگر میر خان کو منانا مشکل تھا۔ وہ 3 دنوں سے اس کے پیچھے گھوم رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ میر خان بس 3 مہینوں کی تو بات ہے، میں یوں گئی اور یوں واپس آ گئی۔ علینا آخر کیا ضرورت ہے جانے کی؟ یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اور وہی ایکسپیریمنٹ تم یہاں بھی بزنس میں کر لو۔ میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، مگر میرے پاس رہو۔ میں 3 ماہ تم سے دور نہیں رہ سکتا، وہ تمہارے ساتھ جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ پیچھے اتنا کچھ سنبھالنا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ناراض ہو گیا تھا۔ علینا نے میر خان کے دونوں گال پکڑ کے مخالف سمت میں کھینچے۔ اگر نہیں جانے دیں گے تو میں یوں ہی آپ کو تنگ کرتی رہوں گی، بہت سر کھاؤں گی آپ کا۔ آپ نے مجھے اپنا پرسنل مینیجر رکھا ہے، مگر میں پاس کی طرح اب پر حکم چلاؤں گی۔ اسے دھمکی دے رہی تھی، اور میر خان ٹہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ تو پہلے میں کس کی مانتا ہوں، اور پہلے باس کون ہے؟ میں تو بس برائے نام ہی باس ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دن تم مجھے اپنے بزنس سے نکال دو گی، تو پھر دور رہے مجھ سے اور محتاط رہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ وہ غصے سے بولی تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، سر تا پیر محبت میں ڈوب چکا ہوں تمہاری۔ آفس کے سارے لوگ مجھے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ باس نے اپنی پرسنل مینیجر کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے، اس کے پیچھے لٹو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی باتوں کو غلط ثابت کر دے اور مجھ سے دستبردار ہو جائے۔ آخر کیا دیکھا ہے آپ نے مجھ میں؟ آپ کے پیچھے تو ہزاروں حسین لڑکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور اوپر سے اتنی امیر ہے، اتنے ہینڈسم بھی ہیں آپ۔ تو میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے پاس سوائے معمولی ذہانت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو تم اب اپنی تعریفیں سننا چاہتی ہو میرے منہ سے؟ وہ دونوں الگ ہی بحث چھیڑ کر بیٹھے تھے، مگر علینا جانتی تھی کہ اختتام پر وہی اسے منا لے گی۔ علینا شفیق کا تعلق ایک لوئر کلاس مڈل کلاس گھرانے سے تھا، مگر وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر بہت اونچے مقام پر جانا چاہتی تھی۔ اس کے خواب شروع سے بہت بلند تھے۔ وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اپنی محنت اور ذہانت سے انسان دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ وہ شروع سے اسکالرشپ پر پڑھتی آ رہی تھی، اس کے ماں باپ کو اس کی تعلیمی اخراجات نہیں اٹھانے پڑتے تھے، اور وہ اسی میں خوش تھے۔ اس نے FSC میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا اور سب کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ہر یونیورسٹی چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر اسکالرشپ پر پڑھنے لگے اور ان کا نام روشن کرے۔ علینا نے لاہور کی ایک بہت ہی مشہور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ وہاں پر بیچلرز کرنے کے بعد اس نے MBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کی کامیابیاں اور شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔
सबको यकीन था कि वो कामयाब बिजनेस वूमैन बनेगी। और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन मीर सहराब खान से हुई, जो एक बार यूनिवर्सिटी के विजिट पर आया था। जब वो उनकी क्लास में आया और चंद बिजनेस से रिलेटेड सवाल पूछे, तो अलीना ने हर सवाल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। एक कामयाब बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स बताने लगी। सहराब उससे बेपनाह मुतासिर हुआ और अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर भी दी थी। अलीना का MBA का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मगर वो साथ कोई जॉब भी करना चाहती थी और ये अच्छा मौका था। वो सहराब खान की कंपनी में इंटर्न की जॉब करने लगी, मगर जल्दी उसने एक उम्दा सलाहियतों के जौहर दिखाने शुरू किए। और इस वक्त सहराब खान का बिजनेस उसके मुखालिफ मुर्तज़ा के बिजनेस से डाउन जा रहा था। अलीना की बताई हुई स्ट्रेटजीज ने ऐसा काम कर दिखाया था। उसकी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, हर कोई उन्हीं को प्रेफर करने लगा। मुर्तज़ा पस मंज़र पर चला गया और सहराब को लगता था कि ये सब अलीना की जहानत का नतीजा है। उसने अलीना को अपना पर्सनल मैनेजर रख लिया और हर मशवरा उससे करता। आहिस्ता आहिस्ता सहराब और अलीना करीब आने लगे और फिर MBA के बाद उसने ऑफिशियली तौर पर सहराब की कंपनी के लिए काम शुरू कर दिया। उन कंपनी के बताए गए प्रोडक्ट ने धूम मचा दी और यूं वो मुल्क के टॉप बिजनेसमैन में शुमार होने लगा था। मगर उसके पीछे हाथ और जहानत अलीना का ही था। वो इसे क्रेडिट दिए बगैर न रहता था। उनकी मोहब्बत पर उनकी बिजनेस की तरह बैक पॉइंट पर जा चुकी थी कि एक दूसरे के बगैर सांस लेना तक महाल था। इसी दौरान अलीना को एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुर्की जाना पड़ा। सहराब चाहकर भी उसे मना नहीं कर सका, मगर जाने से पहले उसकी उंगली में अंगूठी पहना गया और इसे हमेशा के लिए अपने नाम कर गया था। अलीना को अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आया था। जिसे सहराब खान मिल जाए उसे और क्या चाहिए था, मगर वो नहीं जानती थी कि अपनी ही जहानत की वजह से वो किस कदर कड़े इम्तिहान में मुब्तला होने वाली थी। आखिर कौन है ये अलीना नामी लड़की जिसने उसकी कंपनी को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया? हर किसी की जुबान पर उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। मुर्तज़ा अपनी पर्सनल सेक्रेटरी पर चला रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सहराब खान को तबाह कर दे। और सहराब खान एक अरसे से एक दूसरे के हरीफ थे। वो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स बनाते थे। पहले पहले मुर्तज़ा के प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छी प्राइस देते थे और इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, मगर अब पसे मंज़र में चला गया था और यही बात इसे हजम नहीं हो रही थी। उसने अपनी सेक्रेटरी से पता किया था कि सहराब खान के पीछे एक औरत का हाथ है जो अपनी जहानत से उसे आसमान तक पहुंचा चुकी है। मुझे औरत हर हाल में चाहिए, मैं उसे तबाह कर दूंगा। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन शाम तक अपने टेबल पर चाहिए। वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी को हुक्म देता हुआ बोला, तो उसने यह सर में सर हिला दिया और चला गया। शाम को उसकी टेबल पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज थी। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उसके तालीमी रिकॉर्ड ऐसे थे कि कोई मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। उसकी जहानत का डंका दूर दूर तक बजता था। अच्छा, तो ये है सहराब खान के पीछे। अब मैं देखता हूँ कि इसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। मुंह के बल ना गिराया तो मेरा नाम भी मुर्तज़ा नहीं। उसके इल्म में आया था कि अलीना किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुर्की गई हुई है और मुर्तज़ा का इरादा था कि उसे वहीं से उठा लेगा और ऐसी जगह पहुंचा देगा कि सहराब खान उसे ढूंढ भी ना सकेगा। सहराब खान हाथों में फूल का बुके पकड़े हुए दूसरी कलाई में बंदी घड़ी पर वक्त देख रहा था। आज उसे लीना को एयरपोर्ट रिसीव करने आया था। उसने ये 3 माह उंगलियों पर गिन गिन कर गुजारे थे और आज उसे बेताबी से इंतजार था। जहाज लैंड कर चुका था और अब पैसेंजर्स बाहर आ रहे थे। उसने बेचैनी से अलीना को ढूंढा, मगर वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। सारे पैसेंजर्स बाहर आ चुके थे, मगर इनमें वो नहीं थी। सहराब खान को तशवीश लाक हुई। अलीना ने उसे खुद कॉल करके बताया था कि वो उसी जहाज में वापस आ रही है। अचानक उसकी नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ी जिसके साथ वो गई थी। वो जल्दी से उनकी जानिब बढ़ा था और अलीना के बारे में पूछा। वो खुद हैरान थे। अरे वो तो मुझसे पहले ही निकल चुकी थी। उन्हें आपसे मिलने की बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने इन्हें रोका भी नहीं। वो अभी तक आप तक नहीं मिली। उन्होंने हैरत का इजहार किया। तो सहराब खान परेशान हो गया। उसने बार बार अलीना के नंबर पर कॉल की, मगर वो मुसलसल बन जा रहा था। ये क्या मजाक है अलीना, मुझे इस तरह का बिल्कुल मजाक पसंद नहीं। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। उसे लग रहा था जैसे अलीना उसे कोई सरप्राइज देने वाली है, मगर एक गेंदा बीत चुका था।
ना उसकी कॉल आई थी और ना ही वो खुद आई थी। सैराब खान ने एयरपोर्ट इंतजामिया से मालूमात की, मगर कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गए। दोपहर से शाम हो गई थी। वो परेशानी के आलम में ऑफिस आया कि शायद अलीना वहाँ आ गई हो, मगर वहाँ भी नहीं थी। उसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था और सैराब खान की बेबसी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो ऐसा मजाक पहले कभी नहीं करती थी। अलीना के घर से भी पता करवा चुका था, मगर वो वहाँ भी नहीं गई थी। वो जितनी दोस्तों को जानता था उसकी, उन सबको कॉल कर चुका था, मगर उसका अता पता तक नहीं था। आधी से ज़्यादा रात बीत चुकी थी, मगर अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी, क्योंकि वो इतना बड़ा मजाक सैराब से कभी नहीं करती थी। जरूर वो किसी मुसीबत में होगी। पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी थी। सैराब को एक पल भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो प्रोफेसर जिसके साथ अलीना गई थी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की गई, मगर वो खुद बेखबर था। उसका कहना था कि वो एयरपोर्ट पर उसके साथ थी और फिर उसे कोई कॉल आई और जल्दी से बाहर निकल गई, और उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं। उसे गायब हुए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और सैराब खान बिल्कुल ही पागल हो चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन आसमान एक कर दे। वो ना जाने कैसी कैसी कैफियत से गुजर रहा था। आखिर किसने उसके साथ ये दुश्मनी निकाली थी? सैराब खान के दुश्मन हजारों थे। वो किस किस पर शक करता? पुलिस अपना काम कर रही थी। उसने खुफिया अदारे में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर यूँ लगता था जैसे अलीना इस तरह अर्जी पर थी ही नहीं। वो रस्सियों से बंधी हुई थी। एक नीम अंधेर कमरा, उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वो आंखें फाड़ फाड़ के इधर उधर देख रही थी, मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया, कुर्सी के दोनों दहानों पर हाथ रखे और उसके चेहरे के आगे चेहरा झुकाया। अलीना ने उसे कहीं तो देख रखा था, मगर कहाँ वो नहीं जानती थी। क्या मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो? मैं खुद अपना तारीफ करवा देता। मैं वो हूँ जो सैराब खान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो भी मेरे दुश्मन का दोस्त बनता है वो मेरा दुश्मन बन जाता है, और मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। उसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने सुना कि तुम बहुत ज़हीन हो और तुम्हारी जहानत ने उसके बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मैं तुम्हारे सामने वो दो ऑप्शन रखता। वो इसके मुंह पर पट्टी उतारे बगैर अपने ही बोले जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1, जिस पर अमल करके तुम पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकोगी। तुम मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो, मेरे बिजनेस के लिए काम करो, अपनी जहानत और मेहनत मुझ पर खर्च करो, मेरी कंपनी को वापस इसी पोजीशन में ला दो जिसमें वो पहले थी। तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेटजीज मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए काम करोगी तो मैं दुनिया की तुम्हें हर आसाइश दूंगा, हर खुशी दूंगा। बोलो, मंजूर है? वो फिर से उसकी जानिब झुकता हुआ बोला। अलीना खूर ख्वार नजरों से देख रही थी। अचानक उसने अलीना के मुंह से वो पट्टी अलग की। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे बिजनेस पर, उसने इंतहाई नफरत अंगेज अंदाज में कहा। मुर्ताज़ा ने कहका लगाया, मैं जानता था तुम पहली शर्त नहीं मानोगी, इसलिए मैं दूसरा ऑप्शन लाया हूँ जिस पर अमल करना तुम पर लागू है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज के बाद तुम अपनी ज़िंदगी पर हर रोज़ लानत बेचोगी। तुम आईना देखोगी तो अपने वजूद से गिन आने लगेगी, और अगर सैराब खान तुम्हें देखेगा तो तुम दबाकर भाग जाएगा। बहुत दिनों बाद ऐसा खेल खेलूंगा, मज़ा आने वाला है। अभी तो इससे बदला लेने का मज़ा आएगा। मैं तो कई अरसे से इस मौका की तलाश में था कि कब मैं सैराब खान पर वार करूं और उसे मुंह के बल गिराऊं। तुम गिरे हो इंसान, क्या किसी को गिराओगे? मुझे अगर एक और ज़िंदगी मिल जाए तो मैं सैराब खान पर वार कर फेंक दूँ, और जिस दिन उसने तुम्हें ढूंढ लिया ना, उस दिन तुम अपना हशर भी देख लेना। वो तनफ्फुर से बोली तो मुर्तज़ा का गुस्सा आ गया और उसका चेहरा एकदम से सुर्ख पड़ा। उसे जोरदार थप्पड़ अलीना के चेहरे पर जड़ा, जिसकी तकलीफ से वो बलबला उठी। उसकी कुर्सी फर्श बोझ हो चुकी थी और ये उसकी अजियत की इब्तदा थी। कराची के कोठे से इस्लामाबाद के मशहूर कोठे में उसे पहुंचा दिया गया और पिछले 2 महीने से वो यहाँ थी। अगर कोई इसको देखता तो पहचान ही नहीं सकता था। उसके सर के बालों को बुरी तरह काट दिया गया था। उसके सामने रोज उसको अजियत पहुंचाने के लिए ऐसा तमाशा लगवाया जाता कि वो पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रहती, जैसे उससे कोई दुश्मनी निकाल रही थी। उसने कई बार उसे मुख्तलिफ लोगों के पास ज़बरदस्ती भेजा, मगर अलीना की जहनी हालत ऐसी हो गई थी कि कोई उसे छूता तो उसकी चीखों से घबरा जाता।
तभी आज तक किसी ने उसे छुआ नहीं था। उसकी खूबसूरती कहीं खो सी गई थी और नग्गू भाई ने उसे मुर्दा सा कर दिया था। उसे नाचने पर मजबूर करती, उसे मारती, खाने को न देती, बड़ी कड़ी सजा देती जो उसे मिली थी कि वो सोचने और समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी उसकी। मगर अगर कोई याददाश्त में था तो वो एक नाम था, मीर सहराब अली खान, जिसकी उसे ज़रूरत थी, हर लम्हे हर पल थी। 6 महीने से वो बड़ी अजियत में थी। इस वक्त वो आंसू साफ करके खुद में सिमटी छुपी हुई बैठी थी। उस कमरे में जो कुछ हो रहा था उसकी अंतर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे इन आवाज़ों से घिना रही थी और बस कुछ ही लम्हे गुजरे, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतना चीखी कि दोनों वजूद उसे पागल समझकर वहाँ से भाग गए। और जैसे ही भागे, अलीना ने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने वो बिस्तर देखा और अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। दुनिया का कौन सा रुख था जिसकी किस्मत ने उसे दिखा रखा था। वो फूट फूट कर रो दी। इतना शदीद पूरी जिंदगी वो कभी ना रोई थी जितना इन 6 माह में वो रो चुकी थी। वो खुद में सिमट गई थी। उसे ये बिस्तर नहीं दिख रहा था। उसने सारी लाइटें बंद कर दी और सिसकती रही जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। शायद बाहर वाले समझ गए थे कि उसने ये जानबूझकर किया है। नग्गू भाई ने दरवाज़ा पीटा। उसी की वजह से 3 माह से वो यहाँ पर थी, मगर अलीना ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन्हें हरकत की वजह से वो पिटती थी और नग्गू भाई ने उसके सर के बाल काट दिए थे। वो कानों पर हाथ रख के इतनी ज़ोर से कि किसी की आवाज़ उसके कानों में न पहुँच सके। या अल्लाह भदर, या अल्लाह। वो सिसक उठी। खौफ उसकी रगों में समा गया। वो बोल्ड कॉन्फिडेंस लड़की कहीं खो गई थी। इस वक्त खौफ सदर डरी सहमी कमज़ोर वजूद की लड़की खुद को अपने कांपते हाथों में संभाल रही थी, मगर अपना आप संभाला नहीं जा रहा था। 6 माह गुजर गए थे। उसने एक बार भी उसे नहीं ढूंढा, एक बार भी नहीं। वो सिसकते हुए सोच रही थी। ये नहीं सोचा कि उसकी अलीना कहाँ गई। उसी से रोटी की, मगर जवाब नहीं था। वो तो मेरे बगैर सांस को नहीं लेता था, तो क्या अब तक वो जिंदा होगा? वो खुद से सवाल लेने लगी। अचानक दरवाज़ा खुला और वो एकदम खड़ी हो गई। उसकी टांगें भी कांप रही थी। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को बचाए किसी से, ये भी नग्गू भाई के हाथ से अपना चेहरा बचा ले। वो पीछे हटने लगी कि नग्गू भाई ने हमेशा की तरह 2 आदमियों से कहा, इसके वजूद को जकड़ लिया और उसे अपने दिल को न जाने कौन सी भड़ास उसके वजूद पर उतारने लगी। उसे बुरी तरह मार मार के उसके बाल नोच नोच के। अलीना में चीखने की हिम्मत भी नहीं थी, मगर उसकी मार की तकलीफ से वो बेहाल थी। नग्गू भाई की वहशत से अलीना एक लफ्ज़ न बोल सकी और जब वो थक गई तो उसने कहा कि अलीना को फेंक दिया जाए। और वो दोनों आदमी ना चाहते हुए भी रोज़ की तरह उसके वजूद से नजरें चुरा कर वहाँ से निकले गए थे। अब वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अलीना ऊंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी। अरे साहिब, क्या मिला लाकर इसे? मजाल है जो इस मुसीबत का कहीं रेट लग रहा हो। नग्गू भाई किसी से बोल रही थी और उसकी सांस फूल रही थी। दरवाज़ा एक बार फिर से खुल उठा। किसी के जूते की टक टक की आवाज़ अंदर तक आ रही थी और वो जूता अलीना के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया और नीचे को बैठा अलीना के चेहरे पर मोबाइल की टॉर्च मारकर पूरे चेहरे पर चोटों के निशान देखे। सुनहरे बाल बेहंगीमी और कहीं कहीं से कटे हुए थे, जबकि उसके बाद हाथों पर भी चोटों के निशान थे। वो सुकून से मुस्कुराया। रोशनी पड़ने के बायस अलीना ने आंखें जोर से मीच ली। वो इस शख्स को देख नहीं पाई। अरे, इतनी मेहमान नवाजी कर दी तुम लोगों ने इसकी। वो हंसा था। अलीना ने पट से आंखें खोल दी। शायद सामने वाला भी समझ गया था कि वो इसे पहचान चुकी है। एक खौफनाक कहका उस अंधेरे में बुलंद हुआ। अलीना ने उठने की कोशिश की, मगर उससे उठा ही ना गया। वो बुरी तरह जख्मी थी और वो शख्स एकदम खड़ा हुआ और उसने अलीना की उसी जख्मी हाथ पर अपना जूता रख दिया, इतनी जोर से कि वो तिलमिला गई। बस बिन पानी की मछली की तरह वो तरफ उठी। ये सज़ा सेराब के नाम की मिली है मेरी जान तुम्हें। खूबसूरती से उसके जख्मी चेहरे पर एक सतर खींचता हुआ बोला। वो रो रही थी तकलीफ के बायस, जबकि उस आदमी ने लाइटें खोलने के लिए कहा। जबकि एकदम लाइटें खुली तो मुर्तज़ा का चेहरा अलीना के सामने आया। वो भीगी भीगी नज़रों से मुर्तज़ा को देख रही थी। ओ माय डियर, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? वो हंसा था। अलीना सांसें भर के रह गई। हर सांस मुश्किल हो गई थी। वो सिसकी बढ़ती और आंखों से आंसू गाल पर फिसल जाता। मुर्तज़ा ने उसके हाथ से जूता हटाया, जबकि अलीना उसको देखने के बाद कुछ न बोली। मुर्तज़ा उसके पास बैठ गया। मुझे अफसोस है तुम्हारे साथ जो भी हुआ, उसका बहुत अफसोस है।
मगर मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझता हूँ। देखो, मैंने जो भी किया इसमें वाकई कसूर तुम्हारा नहीं था, मगर उस लूज़र के साथ तुम थी तो उसे आगे बढ़ा रही थी और वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो रहा था और इसे ये सब देने वाली तुम थी। हाँ, तुम्हारा गिनाह छोटा था, मगर मुस्तकबिल में ये मेरे लिए वबाल बन जाता। तो अभी मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए ये किया। क्या ज़रूरत थी इतना ज़हीन होने की? मैंने तुम्हें ऑफ़र भी की थी कि मेरे साथ काम कर लो, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। आखिर क्या कमी थी मुझ में? मैं तुम्हें इससे कई गुना ज़्यादा देता, मगर तुम पर तो सैराब खान की मोहब्बत का बोझ सवार था। पूरे 6 माह हो गए हैं, वो आया तो नहीं तुम्हें बचाने। अगर इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हें उसे तुमसे तो उसे तो तुम्हें पाताल से भी ढूंढ लेना चाहिए था, मगर वो अपनी दुनिया में खुश है। शायद उसने कोई नई लड़की फंसा ली होगी। वो हंसा। अलीना ने बड़ी मुश्किल से सांस लिया था। ऐसा लगा बहुत तकलीफ महसूस हुई हो उस सांस में। जिस दिन उसे पता चल गया कि इस सब के पीछे तुम थे, वो दिन तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। वो तुम्हारी चीथड़े भी चील कौवों को खिला देगा। उसने अटकती सांसों के दरमियान कहा तो मुर्तज़ा के चेहरे का रंग बदला। मुर्तज़ा के चेहरे पर बेसाख्ता तारीकी छा गई। अलीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वजूद पर बड़े लगे जख्मों में ज़रा तकलीफ का एहसास कम हुआ हो। उसमें ना मुस्कुराने की हिम्मत थी और ना वो मुस्कुराई, ना उस पर तंज किया। मगर फिर भी मुर्तज़ा ने गुस्से से उसको मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसकी नाक से खून बहने लगा और आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। मत मारो मुझे, प्लीज़ मत मारो। अब मुझे मत मारो, मैं ये तकलीफ नहीं सह पाऊंगी। वो डर को खुद को छुपाने लगी और बुरी तरह रो रही थी, जबकि दूसरी तरफ मुर्तज़ा उठा और एक लात गुस्से से मारी, जिससे अलीना की चीख निकली थी। उस तक और उसे तब तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा जब मैं उस शख्स को जान से न मार दूंगा जो सैराब खान को कुछ देने की कोशिश करेगा। वो दहाड़ा था, जबकि वो डर के छुपने की कोशिश करने लगी। उसकी जहनी सलाहतों ने जैसे दम तोड़ दिया था। मुर्तज़ा बाहर निकला। मैंने कहा था किसी वहशी कुत्ते के आगे डाल दो। उन लोगों भाई पे भड़का था। अरे साहिब जी, मैं आज ही काम कर देती हूँ। और मुस्कुराई तो मुर्तज़ा ने सर हिलाया। अब अलीना का मर जाना ही उसके लिए ठीक था, इसलिए पहले कि सैराब खान उसे तलाश करता, उसका नाम वो निशान तक मिटा देना चाहता था। सैराब खान की कंपनी फिर से डाउन जाने थी, क्योंकि इसका ध्यान ही बिजनेस की तरफ नहीं था। वो तकरीबन नीम पागल हो चुका था। उलझे हुए बाल, बेतरतीब साहुलिया, जो भी उसकी तरफ आता उस पर चिल्लाने लगता और उसे बाहर निकाल देता। उसे सिर्फ एक ही खबर सुननी थी, अलीना के बारे में। इन 6 माह में उसने कहाँ नहीं उसे तलाश किया था। उसने पुलिस की मदद ली थी, खुफिया अदारों की मदद ली थी, मगर वो सब किसी काम के नहीं थे। उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। उनका कहना था कि शायद अलीना मर चुकी है, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो कहीं ना कहीं तो उसकी खबर मिल जाती। और सैराब खान को ये बात तवांचे की तरह लगती थी। वो जिंदा सलामत है, जिस दिन वो मर गई मुझे यहाँ महसूस हो जाएगा। उसने अपने दिल पर उंगली रखी थी। सर, अगर आपको कहीं किसी एक बंदे पर शक है तो हमें उनको तफ्तीश के मरने से ही गुजारते हैं। ऐसा जो कि उस सवाल पर उसने बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाकर उनको दी थी और मीर उस सबसे बड़ा हरीफ था। मुर्तज़ा, मुझे इस पर शक है, वही मेरा सबसे बड़ा हरीफ है। मगर सर, उनकी तो तफ्तीश हम कई बार कर चुके हैं, वो बिल्कुल क्लीन है। और इस मामले में एसएचओ ने नरम लहजे में कहा, सिर्फ शक की बना पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वैसे भी उनकी दुश्मनी आपसे है, ना कि अलीना मैडम से। मुझे तो लगता है जैसे वो खुद किसी रोपोश की हो गई है। सैराब खान को उसकी बात आग की तरह लग गई थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो किसी मुश्किल में है और मैं यहाँ टांग पे टांग रख के बैठा हूँ। वो एकदम से उठा, फिर से अपने बाल नोचने लगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, और तब आना जब कोई अच्छी खबर लेकर आओ, वरना कभी ना आना और मैं इसे खुद ढूंढूंगा। उसने गुस्से से कहा तो एसएचओ वहाँ से चला गया। इन 6 माह में उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उनका सराग अलीना तक नहीं जाता था और मिसिंग थी। खुफिया अदारों का कहना था कि इस दिन वो एयरपोर्ट से एक टैक्सी में बैठकर गई थी। टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया तो इसने एक पता उनके हाथ में थमाया कि वहाँ पर उसने अलीना को छोड़ा था। वो एक पुरानी और खस्ता हाल सी बिल्डिंग थी। सैराब खान खुद वहाँ गया। यूँ लगता था जैसे बिल्डिंग में आग लगाई गई हो और हर चीज़ जलकर भस्म हो गई थी। खुफिया अदारों का भी कहना था कि वहाँ एक जली हुई लाश मिली थी
जो कि किसी लड़की की थी। उनका कहना था कि अलीना को वहाँ पर बुलाया गया था और वहीं पर उसे जला दिया गया, मगर सैराब खान ने वो लाश खुद देखी थी। वो अलीना की नहीं थी, वो कोई और थी, और उसे यकीन था कि अलीना जिंदा थी। और सब लोग सैराब खान को ही पागल समझते थे, मगर वो पागल नहीं था। वो जानता था कि ये सब कुछ आंखों का धोखा है। वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। वो कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। वो जानता था कि अलीना को सिगरेट नापसंद है और इसलिए अलीना की वजह से सिगरेट छोड़ दी थी, मगर अब वो नहीं थी, तो उसका गम हल्का करने के लिए उस सिगरेट के धुएं में पनाह लेता था। अचानक उसका फ़ोन ज़ोरों शोर से बजा। उसने नंबर देखा तो इसके खास बंदे का फ़ोन था। उसने फ़ोन कान से लगाया। बोलो नवाबदीन, मुझे तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार था। क्या कोई अच्छी खबर है? उसने तजस्सुस से पूछा। सर, मैंने तब से मुर्तज़ा का पीछा नहीं छोड़ा। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर कल रात वो एक अजीब सी जगह पर गया और बिल्कुल अकेला था, और उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड या दूसरा अमला भी नहीं था। वो ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं गया, इसलिए मैं थोड़ा सा मोहतात हो गया हूँ। नवाबदीन की बात पर सैराब खान ने बेचैनी से पूछा, कौन सी जगह है? वो मुझे अभी एड्रेस दो। नहीं सर, आपका वहाँ जाना अभी दुरुस्त नहीं होगा, वरना मुर्तज़ा को शक हो जाएगा। पहले मैं खुद पता कर लूँ तो यहाँ किस मकसद के लिए गया था, फिर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मगर वो जगह है कौन सी, इतना तो बता सकते हो ना? सैराब खान ने बेचैनी से पूछा। सर, वो एक रेड लाइट एरिया है, हिचकिचाते हुए कहा, और सैराब खान के तन बदन में जैसे चिंगारियाँ सी जलने लगी। ये वो आखिरी जगह थी जहाँ पर उसने अलीना का सोचा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे इलाके में नहीं हो सकती। उसने इंतहाई बेबसी से कहा। सर, आप परेशान मत हो, मैं सब कुछ मालूम करता हूँ, मगर मैं कुछ नहीं करेंगे जिससे मुर्तज़ा को शक हो कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, वरना 6 महीने की मेहनत रायगा ही चली जाएगी। नवाबदीन ने फौरन से फ़ोन बंद कर दिया और सैराब खान इंतहाई बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। अलीना ऐसी जगह पर कैसे हो सकती है? मुर्तज़ा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी हड्डियां जलाकर खाक कर दूंगा अगर तुमने मेरी अलीना के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो। वो दीवार पर जोर से मुक्का मारता हुआ चिल्लाया। उसकी मुट्ठी से खून निकलने लगा, मगर दिल की जलन फिर भी कम नहीं हो रही थी। वो सारी रात नवाबदीन की तरफ से कॉल का इंतजार करता रहा। आंखों में शदीद जलन हो रही थी। वो अपने रब से दुआएं मांग रहा था कि अलीना ऐसी जगह पर ना हो। वो अलीना की ऐसी हालत देखकर मर जाएगा, वो कैसे खुद को माफ़ करेगा? रात के तकरीबन 3 बजे नवाबदीन की कॉल आई और उसे छूटते ही फ़ोन कान से लगाया था। हाँ नवाबदीन, बोलो, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार था। सर, मैंने बहुत ही रास्ताना तरीके से अपने कुछ दोस्त काक अंदर बेचे थे ताकि उन्हें शक ना हो। उन्होंने सारी तफसीलात मालूम की हैं। वहाँ कोई भी अलीना नाम की लड़की नहीं है। नवाबदीन की बात पर एक ठंडी सांस सैराब खान के मुंह से निकली थी। न जाने ये सुकून बड़ी सांस थी या उसे मजीद बेचैन करके थी। क्या अलीना के मिलने के दिन की वाहिद उम्मीद भी दम तोड़ गई थी? मगर उसकी अगली बात ने सैराब खान को चौंका दिया। सर, गुज़श्ता रात एक लड़के को यहाँ से राजदाना तरीके से निकाला गया था जब मुर्तज़ा यहाँ आया था। उसकी जाने के ठीक आधे घंटे बाद। तब मैं उसका पीछा कर रहा था, इसलिए मैं देख नहीं सका, मगर मुझे पक्की खबर मिली है कि वो अपने मुंजरों से नहीं जानता कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि यहाँ अक्सर ही राजदाना तरीके से लड़कियाँ लाई और ले जाती हैं, इसलिए हम वसूख से नहीं कह सकते। नवाबदीन की बात पर सैराब खान के 14 तबक रोशन हो चुके थे। उस लड़की को कहाँ ले जाया गया था? मुझे सब मालूम करके बताओ नवाबदीन। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलीना ही है, और मेरा शक यकीनन सच साबित हुआ है कि इस सब के पीछे मुर्तज़ा का ही हाथ है। किसी भी तरीके से उसका पता कराओ, वो किस जगह पर है, और फिर मुझे बताओ, मैं खुद वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके हुक्म पर नवाबदीन ने जिस्म में सर हिलाया। फ़ोन रखते ही सैराब खान फिर से बेचैनी से टहलने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, दिल ऐसे था जैसे किसी ने खंजर से चीर डाला हो। वो जानता था कि वो कभी जिंदगी में सुकून नहीं ले पाएगा। वो हमेशा खुद को अलीना का मुजरिम समझेगा। वो फूल जैसी नाजुक लड़की थी। उसका वजूद आंखों में आते ही सैराब खान का चेहरा मजीद सुर्ख पड़ गया। रात ढल गई थी, दिन निकल आया, मगर वो अभी तक नहीं सोया था। उसकी नींद जैसे अब हमेशा की उससे रूठ चुकी थी। मुर्तज़ा ऑफिस में बेचैनी से बैठा था जब नगू भाई की कॉल आई और उसने फ़ोन कान से लगाया।
तुम्हें कितनी बार समझाया कि मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल मत किया करो, दूसरे नंबर पर किया करो, पुलिस मेरे फ़ोन तक ट्रेस कर रही है। अरे साहिब, मैंने कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है, मुझे आज तक ढूंढ नहीं सका कोई। आप बेफिक्र हैं। और आपकी इस फुलझड़ी को मैंने ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां पर वहशी कुत्ते उसके जिस्म को नोच डालेंगे। वो कई दिनों से भूखे हैं, औरत को तरसे हुए हैं। बिलाशुबा अलीना की हालत ऐसी नहीं है कि कोई भी उसे छूने को आगे बढ़े। इस कोठे में आने वाला कोई भी मर्द उसे हाथ नहीं लगाता था, इसलिए मैंने उसे उन वहशियों के हवाले कर दिया है। उन्हें इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की की हालत कैसी है, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो लड़की ही है। वो मकरवा हंसी हंसी तो मुर्तज़ा भी मुस्कुराने लगा। शाबाश लगू भाई, तुमने मुझे खुश कर दिया, मगर यकीन दहानी कर लेना कि वो इसे नोचने के बाद उसका खात्मा भी करते हैं। मैं उस लड़की की लाश को सिराब खान की ऑफिस भिजवाऊंगा और वो कभी ज़िंदगी में खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा, और मैं सारी उम्र उसे ऐसे ही तरकते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा, मगर अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखना, वरना तुम्हारी हालत भी उस लड़की से बदतर न करती तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मुझसे दुश्मनी मोल लेना बेवकूफ़ों का काम है। उसने फौरन फ़ोन रख बंद कर दिया था। अब देखते हैं सिराब खान, तुम्हारा बिजनेस कैसे तरक्की करता है और तुम कैसे सर उठाकर जीते हो। वो सोचकर ही सरशार हो रहा था और फर्श के बीचों बीच लड़ाल सी बैठी थी। उसका जिस्म तकरीबन हड्डियों का ढांचा बन चुका था, बाल जगह जगह से उखड़े हुए थे, आंखें अंदर को धंसी हुई थी। उसकी हालत देख कोई भी उसके करीब न जाता, मगर वो सब के सब हबशी दरिंदे थे, सियाह चमड़ी और सफ़ेद दांतों वाले। उन्हें बस इस बात से मतलब था कि सामने एक लड़की मौजूद है। आज उनकी भूख प्यास मिटने वाली थी। अलीना कपकपाते वजूद के साथ उनको देख रही थी, मगर उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि उठकर अपना दिफा कर सकती। उसे अपने हर जानिब तरीकी नजर आने लगी। आज तो उसका बचना नामुमकिन था। उसमें चीखने चिल्लाने तक की हिम्मत नहीं थी। जिस्म पर इतने जख्म थे कि हर जख्म से दर्द की लहरें फूट रही थी। उसका दिल चाहा कि वो मर जाए। उसने शिद्दत से दुआ की कि वो मर जाए, क्योंकि वो मजीद तकलीफ और दर्द सह नहीं सकती थी। वो अपनी इज्जत के लिए के लुटने का गम भी न सह सकती थी। अचानक एक हबशी उसकी जाने पड़ा और उसके सामने झुका, अपने दांत निकाल कर उसे देखा और फिर उसके बच्चे खच्चे बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उसका चेहरा मकरवा चेहरे के अपने करीब लाया। अलीना बेजान मुजस्मे की तरह उसे देख रही थी। फिर उस हबशी ने अलीना को फर्श पर गिरा दिया और उसके सर जोर से फर्श पर लगा। वो सब के सब उस पर झुके थे। अलीना ने अपनी पूरी कुव्वत जान लगाकर एक दर्दनाक चीख मुंह से निकाली और साथ ही सिराब खान का नाम लिया। वो नाम इस कदर तकलीफ में लिया गया कि कमरे के दरों दीवार कांप उठे। अचानक कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। भारी बूट्स की आवाज़, जिसे वो बहुत सारे लोग एक साथ अंदर दाखिल हुए। अलीना ने आंखें बंद करने से पहले एक धुंधला सा मंजर देखा। इस मंजर में कोई पागलों की तरह भागता हुआ उसकी जाने पड़ रहा था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। दोपहर के 12 बज चुके थे, मगर नवाबुद्दीन की कॉल अभी तक नहीं आई थी। सिराब खान का बेचैनी से बुरा हाल था, मगर सिवाय इंतजार के कोई चारा नहीं था। उसका दिल कहता था कि वो अलीना ही है, मगर वो लोग इसे कहाँ ले गए। अचानक उसका मोबाइल बचा। उसने जल्दी से फ़ोन कान से लगाया। नवाबुद्दीन की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। सर, उस लड़की का ठिकाना मालूम हो गया है। उसने इस्लामाबाद की एक सुनसान एरिया का नाम लिया था, जिसमें एक पुरानी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर लड़की को रखा गया है। नवाबुद्दीन, तुम रही लेना, मैं पुलिस की बाहरी नफरी देकर वहाँ पहुँचता हूँ। मगर सर, अगर वो लड़की अलीना ना हुई तो? नवाबुद्दीन ने कहा, वो लड़की अलीना ही है, मुझे यकीन है, और अगर कोई और भी हुई तो हम उसे बचा लेंगे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना था, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बेड पर थी। उसके दोनों हाथों में ड्रिप्स लगी हुई थी और जिस्म हरकत करने से कासिर था। आखिरी मंजर जो उसे याद आया, इसमें वो हबशी उसकी जानिब बढ़ रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और कोई उसकी जानिब बढ़ रहा था। वो कौन था? उसका दिमाग बिल्कुल शल था, कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से महरूम। वो छत को घूरने लगी और फिर देखा तो कोई इसके सराहने उसके बाजू पर सर रखे बेखबर सो रहा था। अलीना ने आहिस्ता से अपने बाजू को हरकत दी तो इस वजूद में भी हल्की सी जंबिश हुई और फिर अचानक एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। दोनों की निगाहें आपस में टकराई। सिराब खान जल्दी से उठा। अलीना मेरी जान, तुम्हें होश आ गया? शुक्र अल्लाह का, उसके माथे पर बल्लभ रखता हुआ बोला। अलीना उसे साकित पलकों से देख रही थी।
जिसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन था। उसका अभी भी दिमाग मौन था, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। न जाने की हकीकत थी या कोई ख्वाब। उसकी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा। अलीना प्लीज आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ तुम्हारा मीर खान। आ गया हूँ मैं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वो पागलों की तरह उसके ऊपर झुका हुआ था। अलीना की आंखों के सामने अचानक वो सारे हफ्सी आ गए जो इस पर चिपक रहे थे, उसके जिस्म को नोचने को बेताब थे। एकदम से वो हंसियाने अंदाज पे चीखने लगी। उसकी दर्दनाक चीखों से सैराब खान घबरा गया। उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वो अपनी टांगें बेड पर जोर जोर से पटक रही थी और अपनी कलाइयों से ट्रिप्स उतारने की कोशिश कर रही थी। सैराब खान ने उसकी दोनों कलाइयों को मजबूती से जकड़ रखा था। उसके चेहरे पर झुका। अलीना, ये मैं हूँ, तुम्हारा मीर खान। सैराब अली खान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? वो इंतहाई परेशानी से बोला, मगर अलीना की चीखें बुलंद होती गई। अचानक डॉक्टरों की फौज अंदर दाखिल हुई। सर प्लीज पीछे हट जाए, हम इन्हें संभाल लेंगे। सैराब खान न चाहते हुए पीछे दीवार के साथ लगा। अलीना को ऐसी हालत में देखना उसके लिए क़यामत से कम नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो पुरसुकून होने लगी और उसकी आंखें बंद हो गई और वो गहरी नींद में चली गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। आप प्लीज आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक डॉक्टर ने उसे कंधे से पकड़कर सहारा दिया तो वो बेदम सा होकर उनके पीछे चल दिया। डॉक्टर ने चंद पॉट्स उसके सामने रखी। हमने इनके ब्रेन के कुछ टेस्ट किए हैं। इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया है। अगर वो बार बार ऐसा करती रही तो इनको मेमोरी का इशू हो सकता है। शायद वो अपने माजी को भूल जाए। इनको इस कदर मेंटली टॉर्चर किया गया है कि ये उनकी हिम्मत है कि वो अभी तक जिंदा है। अभी जब तक वो मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं होती, मेरा मशवरा है कि कोई भी उनके पास न जाए। उन्हें लगता है कि जो भी इंसान उनके करीब जाता है और उनको छूने की कोशिश करेगा, वो इन्हें नुकसान ही पहुंचाएगा और मारे पीटेगा, इसलिए वो चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर ने सारी तफसील बताई तो सैराब खान सर पकड़ कर बैठ गया। वो मुझे पहचान नहीं रही, मैं कौन हूँ? इसने दर्द भरे लहजे में पूछा। ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो सैराब खान को भूल जाए? उसने बेयकीनी से पूछा था। वो मुसलसल 6 महीने जिस्मानी और जहनी टॉर्चर ले रही है और आप इनसे क्या डिमांड करते हैं कि वो एकदम से ठीक हो जाए? आपको सब्र से काम लेना होगा। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी तो मुर्दा वजूद से उनके ऑफिस से निकल आया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मुर्तज़ा, तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम राहत लफ्ज़ के मायने भूल जाओगे। सैराब खान को अलीना का सुराग कहाँ से मिला? उसे किसने किडनैप किया? SHO उसकी तरफ आया था। सैराब खान इस वक्त किसी गहरी सोच में था। मुझे वो एक पुरानी बिल्डिंग से मिली। मुझे किसी ने इतला दी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसे लाने वाले वहाँ से फरार हो गए थे, इसलिए मैंने जानता कि उसे वहाँ कौन लाया। जब तक वो मुकम्मल ठीक नहीं होती, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसने नॉर्मल से लहजे में कहा, सर अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस दरिंदे को अरेस्ट कर सकें, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकें। सैराब खान ने हाँ में सर हिला दिया और वो जाने की इजाज़त दे दी। SHO के जाने के बाद उसका ख़ास मुलाजिम उसके करीब आया। सर आपने क्यों नहीं बताया कि सब मुर्तज़ा ने किया है? आखिर क्यों आपने उसे बचाया? सैराब खान ने हैरत से उसे देखा और फिर तल्खी जैसा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे पुलिस के हवाले करूँगा ताकि वो ज़मानत से रिहा हो जाए? कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं जाता। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे वो है और मैं उसे सज़ा दूंगा। इस मुल्क की कोई पुलिस या कोई इदारा उसे सज़ा नहीं दे सकता जैसी मैं दूंगा। वो मुलाजिम सर हिलाकर पीछे चला गया। अब सैराब खान को अपने ख़ास बंदे को फ़ोन करना था कि वो मुर्तज़ा के घर में आग लगा दे और यूँ जाहिर करे कि मुर्तज़ा भी अंदर था और जलकर मर गया। वो बिल्कुल वैसे इंतकाम लेना चाहता था जैसे मुर्तज़ा ने उससे लिया था, शायद उससे भरकर। 3 दिन बाद मुर्तज़ा कुर्सी पर रस्सियों से झगड़ा हुआ था। वो एक पुरानी बिल्डिंग में उसकी दीवारें जली हुई थी और जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। बाहर से धूप डायरेक्ट अंदर दाखिल हो रही थी और उसके चेहरे को झुलसा रही थी। वो 3 दिन से भूखा प्यासा यूं ही रस्सियों में बंधा हुआ था। चिल्ला चिल्लाकर उसका गला सूख गया था। अब तो हिम्मत भी नहीं थी बोलने की। वो जानता था कि ये सब किसने किया है, मगर फिर भी तसल्ली करना चाहता था। उसका गुस्सा और सदमे से बुरा हाल था। उसे लगता था कि शायद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और कोई भी सबूत न होने की वजह से वो रिहा हो जाएगा।
مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ جب وہ بھوک سے اور پیاس سے بالکل نڈال مرنے کے قریب ہوا تو اچانک اس بلڈنگ میں کوئی داخل ہوا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ چہرے پر ماسک لگائے قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی کرسی کے بازو پر دونوں ہاتھ رکھتے اپنا چہرہ اس کے قریب لایا۔ یاد آیا یہ منظر یا بھول گئے؟ جب انسان ظلم کرتا ہے نا تو اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ظلم اس کی طرف پلٹ کر بھی ضرور آئے گا۔ جو اذیت تم نے مجھے دی ہے میں اس سے بری اذیت تمہیں دوں گا۔ تمہارا گھر تو جل کر راکھ ہو چکا ہے، سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم جل کر مر گئے اور اب تمہیں کوئی بھی ڈھونڈنے نہیں آئے گا کیونکہ تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے، تم بالکل اکیلے ہو۔ اب تم یہاں تب تک رہو گے جب تک تمہارے جسم سے جان کا آخری قطرہ نہیں نکل جاتا، اور یہ جان اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی۔ تمہیں یہ زندگی بھر درد اور تکلیف کا صحیح معنی سمجھا کر ہی جائے گی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تیز نوکیلا چاقو نکالا اور اس کی دونوں ہاتھوں کے اندر پاگلوں کی طرح گاڑنے لگا۔ پوری بلڈنگ میں مرتضیٰ کی فلک شواد چیخوں سے دل اٹھی تھی۔ صرف مایا اس کے ہاتھوں سے رسنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو سیراب خان، بخش دو مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ التجا کرنے لگا۔ سیراب خان نے وہ چاقو واپس اپنی جیب میں رکھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اب میں نہیں آؤں گا بلکہ کوئی اور آئے گا اور تمہارے چیترے اڑا کر رکھ دے گا۔ سیراب خان نے اس کی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس چاقو سے جا بجا اس کے جسم میں چھید کرنے لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ پلیز مجھے جان سے مار دو، میں یہ تکلیف نہیں سہ سکتا۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا مگر سیراب خان وہاں سے چلا گیا۔ دوپہر سے شام ڈل گئی، وہ نہ جی رہا تھا اور نہ مر رہا تھا۔ اچانک اس بلڈنگ کی دیوار پر ایک چیل آ بیٹھا۔ شاید اس نے دور سے ایک گوشت کی بو سونگھ لی تھی اور اپنی آواز میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلڈنگ چیل کموں سے بھر چکی تھی۔ مرتضیٰ نے موندی موندی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ اپنی اس قدر دردناک موت پر اس کا دل ڈل گیا۔ کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا اور سارے چیل کوے اب اس کے وجود پر چپٹ پڑے تھے اور جان آہستہ آہستہ تکلیف سے کیسے نکلتی ہے وہ جان گیا تھا۔ وہ جب بھی کسی ڈاکٹر، نرس یا کسی آدمی کو اپنے قریب آتا دیکھتی تو اسی طرح چیخنے چلانے لگتی۔ اس کی ٹریٹمنٹ کو 1 مہینہ ہونے والا تھا مگر کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی تھی۔ سیراب خان اسے بس شیشے کے دروازے کے پار ہی دیکھ سکتا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کے جسم کا زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے مگر ذہن ابھی تک ویسا ہی تھا، خوف کا شکار۔ 2 ماہ بعد اسے ڈسچارج کر کے ایک سائیکیٹرک وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں ہر ہفتے ایک سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اس کا سیشن ہوتا تھا۔ پہلے تو اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا مگر آہستہ آہستہ وہ اس سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھنے لگی اور اس کے دماغ کی گرہیں کھول رہا تھا، نرمی سے، محبت سے، وہ جذبے جن سے وہ محروم ہو چکی تھی۔ 6 ماہ تک وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ اس کی صحت میں بہت پہلے سے بہتری آئی تھی اور اب اگر کوئی شخص اس کے قریب آتا تو چیختی نہیں تھی بلکہ سہم جاتی تھی۔ سیراب خان روزانہ وہاں آتا تھا مگر اس کے ملنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر اسے نہیں پہچانے گی تو نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ مگر ایک بار اس نے ہمت کر ہی لی اور CEO ارس لان میں بینچ پر بیٹھی دور پھولوں پر بیٹھی تتلیوں کو دیکھ کر رہی تھی۔ سیراب خان آہستہ سے اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ علینا نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا مگر وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گڑے کچھ کم ہو گئے تھے، بال بھی نئے اگائے تھے جیسے باب کٹ شیپ میں کاٹا گیا تھا۔ یہاں اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ سیراب کچھ پل اسے محبت سے دیکھتا رہا۔ پورے 6 مہینے ہو گئے، تم نے میرا نام نہیں پکارا علینا، میری شکل تو تم بھول گئی ہو، کیا میرا نام بھی یاد نہیں؟ مگر علینا نے جیسے ہی سنا نہیں تھا، کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں کون ہوں اور تمہارا کیا لگتا ہوں؟ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تو میں تمہیں نہیں جانتا مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تم پھر مجھ سے میر خان کہہ کر پکارو گی اور میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں، چاہے مجھے قیامت تک انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ میری محبت کوئی عارضی نہیں ہے جو کہ وقت کے ساتھ دھول دھول میں گم ہو جائے۔ تم میری محبت سے فرار حاصل نہیں کر سکتی، سو کوشش بھی نہ کرنا۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا کیونکہ علینا نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ میر خان کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے دیکھ کر چلائی نہیں تھی۔ اس کے جانے کے بعد علینا کے وجود میں جنبش سی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسی سانس کے ساتھ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے گرا تھا جس میں اذیت تھی اور تکلیف تھی۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں میر خان،
मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उसके लोगों ने हल्की सी जंबिश की थी। उसे एक बिजनेस डील के लिए एमरजेंसी ग्राउंड मुल्क जाना था। वो जाना नहीं चाहता था मगर मजबूरी थी। वहाँ 1 महीने का स्टे था। वो जाने से पहले उससे मिल भी नहीं सका था, मगर ये तकीद कर गया था कि अलीना का खास ख्याल रखा जाए, किसी भी मशकूक शख्स को उससे मिलने न दिया जाए। और फिर वो चला गया। अलीना का सेशन अब भी हो रहे थे। उसकी ज़हनी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। साइकेट्रिस्ट का कहना था कि वो अगर खुद चाहे तो फौरन ठीक हो सकती है, मगर शायद वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती और वो उसी फेज से निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। सैराब खान उसे रोज़ देखने आता था, मगर पिछले 1 हफ्ते से उसे देखने नहीं आया था। अलीना ना चाहते हुए भी अफसरदा हो गई थी। क्या वो थक गया है? क्या वो पीछे हट गया है? वो यही सोचती और रोती रहती थी। क्या इसकी मोहब्बत इतनी जल्दी ख़त्म हो गई? वो तो कहता था कि तुम ऑक्सीजन जैसी हो। वो खुद से ही बातें करती रही थी। 1 महीना होने को आया था और वो अब नहीं आया था। अलीना बाकायदा झंझलाहट का शिकार हो गई थी। वो अब सेशंस भी नहीं ले रही थी, बस कमरे में बंद रहती थी। जब उसकी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो वहाँ से निकल आई। हॉस्पिटल की इंतजामिया ने उसे रोका नहीं था, मगर चंद गार्ड्स उसकी हिफाजत के पीछे भेज दिए गए थे। वो देखना चाहते थे कि वो कहाँ जाती है। अलीना मीर खान के ऑफिस चली आई थी। रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो हैरत भरी खुशी से उसे देखने लगी। सर तो अपने घर होंगे, आज ऑफिस नहीं आए। उसने मुस्कुरा कर कहा तो अलीना को जैसे आग सी लग गई। वो गुस्से की हालत में उसकी घर की जानिब चल दी। अपार्टमेंट पहुंचकर उसने घंटी पर हाथ रखा और हटाना भूल गई। न जाने उसे क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। ये इतनी जल्दी मुझसे कैसे मुंह मोड़ सकता है? बार बार जहन में ये सवालात जन्म ले रहे थे। जब मुसलसल घंटी बजती रही तो अचानक दरवाज़ा खुला और उसने बाहर सर निकाला और उसके बाल गीले थे। शायद वो शावर लेकर अभी अभी निकला था। टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था कि हाथ नहीं थम गए। अलीना, तुम यहाँ? उसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे देख रहा था। अलीना कुछ देर उसे घूरती रही, फिर जोर से उसे पीछे धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई। वो गिरते गिरते बचा था। तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरी मोहब्बत आर्जी नहीं है। क्या वो सब किताबी बातें थी? इतनी जल्दी हार गई तुम? बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से तैरने लगे और वो जंगली बिल्लियों की तरह उस पर चिपटी थी। मैंने तुम्हारे लिए कितने अजियतें सही, खुद को मरने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी। मुझे हर चीज़ भूल गई, मगर तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा नाम सब याद रहा। और तुम मुझे भूल गए मीर खान। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मीर खान ने अचानक उसकी दोनों कलाइयाँ थामी और उसे दीवार से लगाया। फिर से कहना, तुमने क्या कहा? शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। क्या तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा? एक बार फिर से पुकारो ना प्लीज़। मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने के लिए। बंद करो ये ड्रामा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी परवाह है। छोड़ो मेरे हाथ। उसकी गिरफ्त में चिड़िया की तरह फड़फड़ा गई। कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? इस दिन का इंतज़ार तो मैंने न जाने कब से तक किया है। कब तुम मेरी पनाहों में आओगी और मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। फिर तुम मुझे क्यों भूल गई? क्यों नहीं आई मेरे पीछे? 1 महीना हो गया। वो शिकवा किए बगैर न रह सकी। मीर खान शरारत से मुस्कुराया। कोई सांस लेना भी भूल सकता है क्या? तुम तो मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह हो जो वापस आ गई मुझ तक। अब मैं वाकई सांस ले सकूँगा। उसे अपने सीने से लगाए हुए खुमार बरूद इलाजे में बोला था और उसके बाल नरमी से सहलाने लगा। झूठ बोलते हैं आप, मैं नहीं जानती। और इस शर्ट को मुट्ठियों से बूझती हुई बोली तो इसके नरमी से इसको देखकर मुस्कुराया। मैं कल ही वापस आया हूँ। एक डील के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तुम तो थी नहीं साथ, इसलिए मसला हल होने में 1 माह लग गया। मैं कल ही सीधा हॉस्पिटल आने वाला था, मगर जो मुझे तुम्हारे सेक्रेटरिस्ट का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैं अभी ना हूँ क्योंकि तुम काफ़ी बेचैन हो और तुम्हारा जब्त आजमाना चाहते थे कि कब तक तुम मुझसे दूर होगी। वो चाहते थे कि तुम खुद मेरे पास आओ। और देखा, ये ट्रिक काम कर गई। वो इसे अलग करते हुए बोला तो अलीना हैरान लगी और फिर वो पुरसकून हो गई। क्यों भाग रही थी मुझसे तुम? वो इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए बोला, जैसे इसे पढ़ने की कोशिश कराओ। मैं खुद को आपका अहल नहीं समझती। मुझे लगा कि अब कभी आपके साथ कदम पर कदम मैं चल नहीं सकूंगी। वो अजियत, वो टॉर्चर करती रहेगी। आपकी ज़िंदगी में पेचीदियाँ पैदा होंगी। उसने वो सब बताया जो उसके दिमाग में था। अच्छा, फिर क्यों आई हो मेरे पास अब? क्या सब तुम मेरी अहल हो गई हो? वो नरमी से बोला, आप भी मेरे लिए सांस की तरह ज़रूरी हो गए हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं पूरी कोशिश करूँगी पहले जैसी अलीना बनने की।
वो मासूमियत से बोली तो मीर खान हंसने लगा। तुम जैसी हो मुझे कबूल हो, तुम्हें इससे बेहतर बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो और मैं कभी खुद को तुमसे जुदा नहीं करूँगा। वो एक बार फिर से उसे साथ लगा गया। अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, शादी कर लो मुझसे, मेरी तन्हाई खत्म कर दो प्लीज़। उसके बालों को चूमता हुआ बोला तो अलीना की हार्ट बीट मिस हुई थी। आप इस तरह प्रपोजल करेंगे मुझे तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। वो मजीद उसके अंदर छुप गई थी। मतलब मैं हाँ ही समझू ना। वो उसे छेड़ रहा था। अलीना ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मीर खान को सारे जवाब मिल चुके थे। उसके लबों पर लाफानी मुस्कुराहट रेंग गई थी।